Greeting everyone. Dear students, today we proceed our exercise 6.4 from NCERT. In previous video we discussed question number 1 which have 15 parts. Now I am taking question number 2. Find the approximate value of f2.01 की मुझे approximate value निकालनी है. My function is given there. fx is equal to 4x square plus 5x plus 2. ये फंक्शन गिवन है बेटे. आपको f of 2.01 की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स? अपना फोकस देंगे यहाँ पर, सभी सॉल्यूशन यहाँ पर चेक करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे. नाउ f of 2.01, so let x is equal to 2 and delta x is equal to 0.01. x is equal to 2 and delta x is equal to 0.01. So x plus delta x is equal to 2.01. That is. Now similarly same step which is used in question number 1. So y is equal to x. Delta y plus delta y is equal to x plus delta x. A is function y is equal to f of x. Now delta y, it is the equation first. Second from first minus करेंगे. Delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. Now students, delta y previous questions के अंदर मैंने बताया था. डेल्टा वाई एक स्मॉल फॉर्मूला याद करना है. डेल्टा वाई का फॉर्मूला dy by dx into delta x. डेल्टा वाई is equal to dy by dx into delta x is equal to f of x plus delta x. What is 2.01? Now what is fx given in the question? Now students, here is dy by dx. जो फंक्शन है वो मैंने किसके इक्वल माना है? y के. तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पहले. इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां निकाल रहा हूं मैं. f डैश x कितना आएगा? 8x प्लस 5. ये इसका डेरिवेटिव आ गया. और डेरिवेटिव यहां लिख दिया बेटे मैंने. 8x प्लस 5 इनटू डेल्टा x. here is delta x. what is the value of delta x? 0.01 is equal to f of 2.01 minus fx. What is fx? fx is there 4x square plus 5x plus 2. Now students, in the given question, given statement x is equal to 2, we assume that x is equal to 2. So put the value of x in this equation. Now 8 into 2 plus 5, 0.01 is equal to f of 2.01 minus 4 square of 2 plus 5 into 2 plus 2. After that 8 to the 16, 16 or 5, 21 multiply 0.01 is equal to f of 2.01 minus square of 2, 4 for the 16, 5 to the 10 or plus 2. Now next friends, 21 की 0.01 से मल्टीप्लाई पॉइंट हटाएंगे, अपन में डेढ़ लग जाएगा तो 0.21 हो जाएगा. 0.21 is equal to f of 2.01 minus 16 or 10, 26 or 2, 28 minus 28, taking right and left hand side. 28 plus 0.21 is equal to f of 2.01. After that 28.21
21 इज योर आंसर। दोबारा फिर देखें क्वेश्चन को दोबारा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी थी इस फंक्शन की व्हेन f ऑफ 2.01 हो। तो जब f ऑफ 2.01 है तो आपको एज्यूम करना है x की वैल्यू 2 और डेल्टा x की वैल्यू 0.01। नाउ fx plus delta x is equal to f of 2.01 which is discussed in the question number 1. Now same step is there, y is equal to fx. Let delta x be the small increment in x and delta y be the corresponding increment in y. Now students, y plus delta y is equal to f of x plus delta x. It is the equation second. Second equation, first equation, subtract second from first. Second from first, y plus delta y minus y, y से y कैंसिल हो गया, delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. Now students, मैंने कल भी डिस्कस किया था आपके आगे कि डेल्टा y एक स्मॉल फॉर्मूला याद करना है, डेल्टा y is equal to dy by dx into डेल्टा x. तो डेल्टा y की जगह रिप्लेस कर दिया dy by dx into डेल्टा x is equal to f of 2.01 minus f of x. Now dy by dx, f dash x हमने आपको फाइंड आउट किया 4x square, डेरिवेटिव ऑफ 4x square is 8x, डेरिवेटिव ऑफ 5x is 5, डेरिवेटिव ऑफ 2 कांस्टेंट टर्म, एवरी कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव 0, तो सो कांस्टेंट 2 डेरिवेटिव 0, 8x plus 5, delta x 0.01 by f of 2.01 minus fx given in the question 4x square plus 5x plus 2. Now put the value of x is 2. Let x is equal to 2, so put the values of x is equal to 2 in whole equations. इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद 21 into 0.01 is equal to f of 2.01 minus 2 to the 4, 4 4 the 16, 5 to the 10 plus 2. इनको ऐड करेंगे 28 आएगा स्टूडेंट्स, राइट हैंड में माइनस में इधर लेके प्लस में हो जाएगा 28 प्लस 0.021, इनको ऐड करेंगे 28.21, ये आपका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा f of 2.01. दैट इज योर आंसर. Clear students? Pause the video and note it down. Yes students, question number 2. Now question number 3, same similar as question number 2, try yourself. Now I am taking question number 4. Read the statement carefully. Question number 4. Students, open your book and read the statement carefully. Question number 4, what in the given in the question, find approximate change, find approximate change in the volume of v of a cube. क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेट चेंज किसके अंदर, वॉल्यूम में, किसके, क्यूब के में. इट मींस डेल्टा v आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा v यानी v के अंदर चेंज पूछा गया है, वॉल्यूम के अंदर चेंज पूछा गया है, किसके, क्यूब के, और साइड कितनी है, x. साइड, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x मीटर. नाउ caused by increasing the side by 1%. क्वेश्चन समझे बेटा ध्यान से, क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि क्या, कि क्यूब की एक साइड, सभी साइडें सेम होती हैं, क्यूब की साइड के अंदर 1% इंक्रीज हो जाए, यानी चेंज दे रखा है. चेंज क्या दे रखा है बेटे, डेल्टा x गिवन आपके पास क्वेश्चन में, डेल्टा x गिवन है कितना, 1% ऑफ साइड, देखो लिखा हुआ बेटे, साइड इंक्रीजिंग द साइड बाय 1% ऑफ व्हाट, x. सो स्टूडेंट्स 1/100 into x यानी x/100, ये मेरे पास गिवन है डेल्टा x. तो यदि साइड के अंदर ये चेंज है तो वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज होगा, वी हैव फाइंड दिस टाइप. सो लेट मी स्टार्ट स्टूडेंट्स, बहुत इधर ध्यान देंगे सभी. एयर इज गिवन क्यूब, सो व्हाट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, volume of cube is x cube, side cube, everybody knows that volume of cube is equal to side into side into side, so x cube. Now differentiate both sides with respect to x. Here is dv is equal to 3x square, 3
x square. Any doubt? Now dv, कल भी बताया था वही स्टेप बार dv. अब मुझे d डेल्टा v फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा v क्या था स्टूडेंट्स? डेल्टा v इज इक्वल टू dv by dx into delta x, dv by dx into delta x. तो dv by dx तो मेरा निकल गया बेटे कितना 3x square, और डेल्टा x कितना निकला x by 100. चेक कर लो ना भाई, डेल्टा x तो भी निकला था x by 100, ये मैंने पुट कर दिया. नाउ स्टूडेंट्स 3 by 100 x cube and now 0.03 x cube, 0.03 x cube मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर चेंज पूछा गया था और वॉल्यूम का चेंज तो क्यूबिक में होगा, तो जस्ट लाइक योर दैट इज योर आंसर. दोबारा फिर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या गया है, अप्रोक्सीमेटली चेंज बताना था वॉल्यूम के अंदर बेटे. किसके वॉल्यूम के अंदर? क्यूब के अंदर. कब? जब साइड के अंदर 1% चेंज होता हो. तो लेट साइड ऑफ द क्यूब इज x मीटर. नाउ चेंज इन साइड, इट मींस डेल्टा x. 1% of side is x, so 1% of x is 1 by 100x. It is delta x. Now v is equal to x cube, derivative both side with respect to x, dv by dx is equal to 3x square. Now students, delta v, we have find delta v, then delta v is equal to dy by dx into delta x. dv by dx here is 3x square. Now delta x is x by 100, so taking simplification is 0.03 x cube meter cube. That is your answer. Pause the video and note it down this question, students. Yes. Now students, I am taking question number 5. Question number 5 is similar to question number 4. One thing is important in this question. What? Question पढ़ेंगे question number 5. Find approximate change in the surface area. अब क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था आपने अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम. नाउ इन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया के अंदर चेंज बताना स्टूडेंट्स. तो व्हाट, यानी डेल्टा एस मुझे फाइंड आउट करना है. डेल्टा एस, एस स्टैंड फॉर सरफेस एरिया. डेल्टा एस मुझे फाइंड आउट करना है. कब? ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर. सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी क्यूब है और साइड x मीटर है, तो लिख देंगे लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x मीटर. नाउ चेंज क्या रखे बेटे साइड में, कितना डिक्रीज. बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ध्यान रखना है. डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%. साइड के अंदर डिक्रीजिंग का आएगा तो डेल्टा x चेंज होगा कितना, -1% ऑफ x. बहुत ध्यान से देखना बेटे, यहां पर पिछले क्वेश्चन में इंक्रीजिंग वर्ड था, ठीक है, यहां पर डिक्रीजिंग है तो माइनस का साइन लगाना. -1%, -1 by 100 into x, यानी -x/100. नाउ स्टूडेंट्स ये चेंज हो गया किसके अंदर, डेल्टा x के अंदर. सो व्हाट इज द सरफेस एरिया फॉर्मूला? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखना पड़ेगा बेटे यहां पर. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, everybody know surface area of cube 6x square, 6 into side. Now delta ds by dx निकालेंगे, कितना आएगा 12x. कितना आएगा 12x. Now in this question we have question is asking delta s के अंदर कितना चेंज आना चाहिए. तो कल भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया, डेल्टा s का फॉर्मूला लगा दो बेटे, ds by dx into delta x. कितना इजी फॉर्मूला है, बस ds by dx what 12x and delta x minus x by 100. So it means friends -12x square by 100 and next step is friends -0.12 x square. यूनिट है आपके पास मीटर, तो मीटर स्क्वायर लिखना है. तो एरिया के अंदर ये चेंज हुआ बेटे. दैट इज योर क्वेश्चन. नोट डाउन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. कोई दिक्कत हो तो, कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में डालिए. आपको यदि कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो दोबारा फिर देख लें. आपके अंदर क्वेश्चन में अंदर बताया गया था
अप्रोक्सीमेट चेंज किसके अंदर, सरफेस एरिया के अंदर। तो मैंने सरफेस एरिया के अंदर ही चीज बताया है। क्लियर स्टूडेंट्स? यदि फिर भी क्लियर नहीं हो, दोबारा फिर वीडियो को पॉज करके देखें, समझे इस क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन में टीचर ने बताया हुआ है। यस स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, एनसीईआरटी के लिए, सीबीएसई के लिए और एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ध्यान से देखना है। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर की रेडियस इज मेजर्ड एज 7 मीटर, गिवन है बेटे क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी, 7 मीटर, ये गिवन है। विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, इट मींस रेडियस के अंदर चेंज डेल्टा r गिवन है 0.02 मीटर। ओके, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर चेंज पूछ रखा है बेटे, बता दो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, डेल्टा v। क्या आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आता भाई? बहुत अच्छी तरह से सिखाया हुआ है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बताया था बेटे कि ये चैप्टर टफ होता है। किस लिए टफ होता है? क्योंकि इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। तो आपको 10th क्लास के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव फाइंड डेल्टा v। So delta v, what is the formula of delta v? Delta v is dv by dx into delta x। हर एक क्वेश्चन में ये अप्लाई किया है, dv by dx into delta x। Now students, firstly we have find in this question students, not x, dv by dr, because radius is r। Now dv by dr मेरे को निकालना है 4/3 pi r square। Now 3 से 3 cancel, 4 pi r square। Now students, value of r is given what, 7 into 7। तो कितना हो गया बेटे, 7 7 जा 49, 4 से मल्टीप्लाई, 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16 और 3 196 पाई। ये आ गया आपके पास चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r। Now students, we have find delta v, dv by dr is 196 pi, and delta r in the given is 0.02। So multiply this, 196 multiply 0.02, 2 6 are 12, 2 9 are 18 और 1 19, 2 1 are 2 और 3, 2 9 are 18 और 1 9, 2 1 are 2 3, 392 पाई। तो पॉइंट कहां लगेगा आपका, 3.92 पाई, और ये मीटर में था ना बेटे, क्यूब ऑफ मीटर, ये आपका आंसर होगा। ये चीज आपको बताया गया था क्वेश्चन में। क्लियर स्टूडेंट्स? दोबारा फिर देखें, आपके पास बेटे रेडियस गिवन थी, रेडियस के अंदर चेंज गिवन था, आपको वॉल्यूम के अंदर चेंज फाइंड आउट करना था, और dv का डेल्टा v का फॉर्मूला मैंने बताया है, dv by dr into delta r, dv by dr into delta r। तो फर्स्टली वी हैव फाइंड dv by dr, तो v is equal to 4/3 pi r cube, dv by dr is equal to 4/3, 3 आगे आ गया बेटा 3 pi r square, 3 से 3 कैंसिल, 4 pi r square। given radius is equal to 7, so we put r 7 into 7, here is 196 pi। this is the change in volume with respect to r। now we have find in this question dv, delta v is equal to dv by dr is 196 pi, delta r 0.02, so we multiply this 3.92 pi meter cube, that is your answer। note down this question students। yes, yes friends, now I am taking question number 7। if the radius of sphere is measured as
9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटे, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस गिवन है 9 मीटर with an error of 0.03 meter, delta r is equal to 0.03 meter. Then find an approximate error in the calculate its surface area. Surface area के अंदर चेंज बताना बेटे। And we know that surface area of sphere what 4 pi r square। बेटे सबको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बट 4 pi r square। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेट एरर चेंज किसके अंदर बताना है, सरफेस एरिया के अंदर चेंज बताना है। इट मींस इन दिस क्वेश्चन वी हैव फाइंड डेल्टा s, बस सिर्फ ये निकालना आपको। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो फर्स्टली यू हैव फाइंड ds by dr। ds by dr कितना होगा, 4 to the 8 पाई r, ये हो गया ds by dr। वैल्यू पुट करना चाहिए, वैल्यू पुट कर दें 8 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r इज गिवन इज 9, तो 9 8 is 72 पाई हो गया 72 पाई। ये आपके अंदर सरफेस एरिया के अंदर चेंज आ गया ds by dr। नाउ कितना अप्रोक्सीमेट चेंज आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा s फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। डेल्टा s का फॉर्मूला याद होना चाहिए ds by dr into डेल्टा r। नाउ स्टूडेंट्स ds by dr is 72 पाई और डेल्टा r की वैल्यू गिवन है 0.03, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 to the 6, 3 से हम 21, तो यहाँ पर पॉइंट लिख जाएगा 2.16 पाई। और सरफेस एरिया की बात करी गई है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर में है ना, हाँ ठीक है मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 और 5 जैसा ही है, बिल्कुल एज इट इज। आप क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होगा, वो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, एज लाइक एज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ एट लास्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। नोट डाउन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है बेटे, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, वही सेम क्वेश्चन है बेटे बार बार, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के अंदर आपके अंदर चेंज पूछा गया है ऑफ साइड x मीटर caused by the increasing the side of 3%। तो साइड ऑफ क्यूब गिवन है, साइड ऑफ क्यूब गिवन है बेटे x और चेंज क्या रखा है डेल्टा x, कितना चेंज किया गया है 30%, 3% ऑफ साइड, साइड क्या थी x, तो 3/100 इंटू x, तो 3x/100, ये डेल्टा x हो गया बेटे। आपको बताना था वॉल्यूम के अंदर चेंज, यानी डेल्टा v फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा v का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dx इंटू डेल्टा x। अभी तक तो सभी क्वेश्चन हम यही किया है। एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज x³ साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो dv/dx कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। तो पुट हियर बेटा dv/dx इज 3x² and delta x, what the delta x value of delta x here is 3x/100, 3x/100, so it means 9/100 x³। now students 0.09 x³ 0.09 x³ और वॉल्यूम दे रखा है तो मीटर क्यूब, तो ये आपके पास डेल्टा v आ गया। और आपके पास 4 ऑप्शन थे आपके पास, 0.06 x³ मीटर क्यूब, 0.09 x, ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट। तो आंसर देखेंगे करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज योर आंसर, इट इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टूडेंट्स you have done your complete exercise 6.4 in your fair notebook। 2 वीडियोस में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। 6.4 की फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने डाला था बेटे क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर 15 पार्ट्स थे। वो आपने कुछ पार्ट्स मैंने वीडियो के अंदर सोल्व किए, कुछ आपको करने के लिए बोले गए थे। सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी छोड़े गए हैं जो आपने खुद करने हैं। आपसे कोई पॉइंट्स में डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं, या आप पर्सनली मेरे पास मैसेज करिए, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इंडिविजुअली, ग्रुप में ना करके आप इंडिविजुअली मेरे पास मैसेज करिए, सर ये क्वेश्चन हमारा नहीं निकल रहा, तो
आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।